اسرائیل اور ایران کے درمیان دشمنی کیسے پیدا ہوئی اور وہ کیسے ناظرین آپ کی میزبان فائقہ حسین حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ پہلے ہی یہ ایک دو روز کی ہی بات ہے جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو بہت سے لوگ بہت سے ممالک اس کا جشن ابھی تک منا رہے ہیں، لیکن سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اسرائیل بھی اب چپ نہیں بیٹھے گا، وہ مزید حملے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن ابھی سوچنے میں یہ آتا ہے کہ اب ایران کیا اسرائیلیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا جیسے اس نے اس حملے میں کیا۔ اس نے 400 سے زائد میزائل کا استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد اس نے جب وہ میزائل اسرائیلیوں کی طرف روانہ کیے تو ان کا نہ کہنے سے بھی زیادہ نقصان ہوا، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ اپنا نقصان جو ہے وہ ریویل نہیں کروایا، اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے، لیکن سوچنے میں یہی آتا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ ان کے مین اڈوں پر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، ان کی مین پوائنٹس کو، ان کی انٹیلیجنس کو اس چیز کا شکار بنایا گیا ہے، جس سے اسرائیل اب بہت زیادہ ڈرنے کا تو کہا نہیں جا سکتا لیکن اس بات سے آمادہ بھی کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے ایران نے جو میزائل اسرائیلیوں پر بھیجے اور اس کے بعد سے یہ بھی خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ اسرائیلیوں کی دھجیاں اڑانے کے بارے میں ٹوٹلی سوچ چکا ہے اور وہ کسی قدم سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اب۔ لیکن اس بات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کیسے ہوئی؟ یہ ایک دوستی تھی، ایک موقع پر کیا کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں ممالک آپس میں بڑے اچھے دوست تھے، لیکن آخر ایسی دشمنی کا سامنا انہیں کرنا ہی کیوں پڑا ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جب سے فلسطین کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے ایران نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے، تب سے یہ دشمنی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان دشمنی کیسے پیدا ہوئی اور وہ کیسے اتنی بری جنگ میں تبدیل ہوئی ہے، اور یہ بھی خدشے پیدا ہوتے ہیں کہ اب دونوں طرف سے جنگ جو ہے وہ برابر کے طور پر کی جائے گی، برابر حملہ کیا جائے گا، تو کیا اس برابر حملے کے دوران دونوں ممالک کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ اس وقت ہی پتا چلے گا جب یہ میزائل دونوں طرف سے ایکول ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بعد نظر آئیں گے۔ لیکن یہ بھی آتا ہے کہ اب جیت ایران کی ہونے والی ہے۔ ایران نے سننے میں آتا ہے کہ پاکستان سے بھی مدد مانگ لی ہے اور اس نے یہی کہا ہے کہ اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسلحے کی ضرورت ہے، کچھ میزائلوں کی ضرورت ہے، جو کہ اس نے پاکستان سے مانگنے کی اپیل کی ہے، مدد مانگنے کا کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایران اپنا اگلا وار کب کرتا ہے اور کس بنا پر کرتا ہے اور کس طرح کی ہیوی ٹیکنیک یوز کرتا ہے۔ تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کی دوستی خونی دشمنی میں کیسے تبدیل ہوئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایران نے اپریل کے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد منگل کی شب اسرائیل پر 400 بیلسٹک سے زائد میزائل سے حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے اس حملے کو تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور اس حملے کو لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے علاوہ اپنے کمانڈرز کو اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنائے جانے کا بدلہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس کارروائی کو ایران کی بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب دیا جائے گا اور ایران کو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے۔ مطلب کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ نتائج جو ہیں وہ ایران کو بھگتنے پڑیں گے۔ وہی بات ہے کہ ان میزائلوں کا 400 سے زیادہ بیلسٹک میزائل جو ایران نے اسرائیلیوں کی طرف بھیجے اور ان کی تباہی مچائی، ان کے خفیہ اڈوں کو تباہ کیا گیا، فوج کے بندے مارے گئے، عوام کا نقصان کیا گیا، تو کیا اب اسرائیل چپ بیٹھے گا؟ ادھر ہی نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے یہ میزائل بھیج کے ایک بڑی غلطی کی ہے جس کا ازالہ اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کیا وار ہوتا ہے، یا ایران ان کی طرف سے وار کرنے سے پہلے ہی ان پہ کوئی دوسرا وار کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جب یہ کہا یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان برسوں پرانے قصے کا تازہ ترین معاملہ ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان برسوں سے خونی دشمنی جاری ہے۔ جغرافیائی سیاسی عوامل کے نتیجے میں ان کی شدت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ان کے قضیے مشرقی وسطی میں عدم استحکام کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ تہران اسرائیل کو امریکہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے شیطان کوج چھوٹا شیطان کہتا ہے، جبکہ اس کے لیے امریکہ شیطان بزرگ اور
यानी बड़ा शैतान है। और तेहरान इसराइल को अमेरिका का हलिफ होने की वजह से जो छोटा शैतान या बड़ा शैतान समझता है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि यानी कि इसराइल समझता है कि वो छोटा शैतान है और अमेरिका को वो समझता है कि वो बड़ा शैतान है, यानी कि दोनों अपने आप को शैतान से कम तर नहीं समझते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि इनका जो वो है, मतलब इनका ज़र्फ कितना है कि ये लोग किस तरह सोचते हैं, अपने आप को किस कैटेगरी से मिला रहे हैं, इनको तो इस चीज का भी आइडिया नहीं है। दूसरी जानिब इसराइल का इल्जाम है कि ईरान दहशतगर्द ग्रुपों की माली मावनत करता है और इसके मफादात के खिलाफ हमले करता है। इन पुराने दुश्मनों के दरमियान दुश्मनी के नतीजे में बहुत हिलाकतें हुई हैं और अक्सर सब बस पर्दा कार्रवाइयों के तौर पर सामने आया है। कोई भी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती है, ताहम गजा की जंग ने हालात को मजीद खराब किया है। इसराइल और ईरान की दुश्मनी कैसे हुई? इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात सन 1969 तक काफी खुशगवार हुआ करते थे, लेकिन फिर तेहरान के इक़्तिदार पर आयतुल्लाह खमियानी के नाम नहाद इस्लामी इनकलाब ने कब्जा कर लिया। अगरचे ईरान ने फलस्तीन की तकसीम के मंसूबे की मुखालफत की थी, जिसकी वजह से सन 1948 में इसराइल की रियासत कायम हुई थी, लेकिन मिस्र के बाद ईरान दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इसे तस्लीम किया था। इस वक्त ईरान में बादशाही थी और वहाँ पहलवी खानदान के शाहों की हुकूमत थी और वो मशरकी वस्ती में अमेरिका के अहम इत्तेहादियों में शामिल भी थे। इसी वजह से इसराइल के बानी और इसके पहले सरबराह ड्यूटी बिन गोरेन की हुकूमत ने अपने अरब पड़ोसियों की तरफ से नई यहूदी रियासत को मुस्तरद करने का, इसी वजह से जो उनके पहले सरबराह थे उनको पड़ोसी ममालिकों की तरफ से नई यहूदी रियासत को भी उन्होंने मुस्तरद किया था। ईरान से दोस्ती की कोशिश की और इनकी दोस्ती हासिल भी की, लेकिन सन 1969 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमियानी के इनकलाब ने शाह का तख्ता उल्ट कर रख दिया, एक इस्लामी जमहूरिया कायम की और इसने खुद को मुल्ज़िमों के मुहाफिज के तौर पर पेश किया। नई हुकूमत की शिनाख्त की एक अहम अलामत में अमेरिका की मुखालफत और इसके इत्तेहादी इसराइल की सामराजियत और मुस्तरद करना शामिल था। यानी कि कुछ 1969 में जब उन लोगों ने अपने एक इस्लामी जमहूरिया कायम करने का सोचा, यानी कि जालिमों के पंजे से छुटने की कोशिश की कि अपनी एक अलग रियासत बनाई, अपने दीन को उजागर करने की कोशिश की, तो वहाँ इनकी ये दुश्मनी का जो सीन था वो शुरू होना शुरू हो गया था। वहीं से इनकी दुश्मनी छोटी छोटी हर एक नोक झोंक पर चलती आ रही थी, जो अब आकर एक बहुत ही बड़ी दुश्मनी साबित हो रही है। यानी कि ये कोई आम दुश्मनी नहीं रही, ये खूनी दुश्मनी बन चुकी है। खून का बदला खून से लिया जा रहा है। इस टाइम ये हालात पैदा हो चुके हैं। आलमी तनाज़ात को रोकने और हल करने की कोशिशें करने वाली एक आजाद एनजी और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोग्राम के डायरेक्टर अली वहाज ने बीबीसी को बताया कि इसराइल के खिलाफ दुश्मनी नहीं, ईरानी हुकूमत का एक ततून था, क्योंकि इसके कई रहनुमाओं ने फलस्तीनियों के साथ तरबियत ली थी और उन्होंने लेबनान जैसी जगहों पर फलस्तीनियों के साथ गोरिल्ला जंग में हिस्सा लिया था और इनके साथ बहुत हमदर्दी थी। इसके अलावा वाज़ा ने यह भी कहा कि नया ईरान खुद को एक इस्लामी ताकत के तौर पर पेश करना चाहता था और इसराइल के खिलाफ फलस्तीन मसले को उठाना चाहता था। और उन्होंने जब वो इनकी ममालिक को, मुस्लिम ममालिक ने इनके इस फैसले को तर्क कर दिया, तो इस तरह तेहरान में सरकारी हमायत के साथ बड़े फलस्तीनी हामी मुजाहरे आम हो गए। वाज़िया ने वजाहत करते हुए कहा कि ये दूसरी तरफ इसराइल में ईरान के खिलाफ दुश्मनी सन 1990 की दहाई तक शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि इस वक्त तक सदाम हुसैन के इराक को बड़ा इलाकाई खतरा समझा जाता था। यहाँ तक कि इसराइली हुकूमत ने ईरान कंतरा के नाम से मशहूर खुफिया प्रोग्राम को मुमकिन बनाने में सालिस किरदार अदा किया, जिसके जरिए प्रोग्राम को मुमकिन बनाया गया और अमेरिका ने सन 1980 से सन 1988 के दरमियान इनके पड़ोसी इराक के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को ईरान की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन वक्त के साथ इसराइल ने ईरान को अपने वजूद के लिए एक अहम खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया था और दोनों के दरमियान दुश्मनी ज़बानी जंग से निकलकर हकीकी जंग तक चली गई है। यानी कि मकसद ये था कि जब इनकी जंग स्टार्ट हुई तो ये एक वर्बली टॉक थी, एक वर्बली जंग थी, दुश्मनी थी, लेकिन अब ये जंग जो है वो हकीकी जंग की तरफ अपना जो है रुख है वो मोड़ रही है और ये कोई आम जंग नहीं नजर आती, ये खूनी जंग नजर आती है, खूनी दुश्मनी नजर आती है, जिसका बदला सिर्फ खून से ही लिया जा सकता है। अदरवाइज बात करके या कुछ मीटिंग्स करके या कुछ कमेटीज को इकट्ठा करके ये जंग खत्म नहीं होने वाली है या
मजीद बढ़ने वाली नजर आती है, लेकिन उस सूरत में कि मजाइल का बदला मजाइल के जरिए ही लिया जाएगा। इसराइल और ईरान के दरमियान वज़न ने निशानदही की कि दूसरी बड़ी इलाकाई ताकत सऊदी अरब से भी ईरान का सामना रहा है। ईरान इस बात से आगाह है कि वो बुनियादी तौर पर सुन्नी और अरब इस्लामी दुनिया में एक फारसी और शिया मुल्क है, और ईरानी हुकूमत ने अपनी तन्हाई के एहसास के पेश नजर एक हिकमत अमली, वो बुनियादी तौर पर जब सुन्नी और ये वाली मामला भी बीच में आना शुरू हुए तो पता चला कि एक हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी गई कि कहीं इसके दुश्मन एक दिन इसकी सरजमीन पर ना हमला कर दें। इसी तरह तेहरान के साथ मुंसलिक तंजीमों का नेटवर्क फैल गया और उन्होंने ईरानी मफादात के लिए फौजी कार्रवाइयां भी करनी शुरू कर दी थी। इनमें लेबनान से ताल्लुक रखने वाले हिजबुल्लाह सबसे नुमाया है। इस तंजीम को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। आज नाम नहाद ईरानी मुजाहमत का महमूर लेबनान, शाम, ईरान, इराक और यमन तक फैला हुआ है। इसराइल भी खामोश नहीं बैठा रहा और उसने ईरान और इसके इत्तेहादियों पर हमले किए और दीगर कार्रवाइयों का अंजाम दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा अक्सर तीसरे ममालिक में किया जहां वो ईरान नवाज अफवाज से लड़ने वाले मुसल्लह ग्रोहों की माली मुआवनत और हमायत करता है। ईरान और इसराइल के दरमियान लड़ाई को शेडवार के तौर पर बयान किया गया कि दोनों ममालिक ने अगरचे एक दूसरे पर हमला किए, लेकिन उन्होंने बहुत से मामलात में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शिरकत का एतराफ भी किया था। सन 1992 में ईरान नवाज इस्लामी खाने जहाद ग्रुप ने ब्यूनस आयर्स में इसराइली सफारत खाने को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 29 अफराद हलाक हुए थे। इससे कुछ अरसा कबल ही हिजबुल्लाह ने रहनुमा अब्बास अल-मूसी को कत्ल कर दिया था और इस हमले को वसी पैमाने पर इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस ने मंसूब भी किया था। यानी कि देखा जाए तो इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग बहुत देर से चलती आ रही है। इनका एक खुशगवार जो माहौल था वो किस तरह खराब हुआ और क्या क्या नहीं इन लोगों ने किया, एक दूसरे के मुजाहिदीन को मारा, मतलब अजीम इस तरह नहीं हालात को पोजीदा करने की कोशिश की, और वो हमेशा एक ही बात ये जानते थे कि किस तरह से इस बात को नजर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि एक छोटी सी जंग थी जो उनकी स्टार्ट हुई और वो कैसे इतनी बड़ी जंग में तब्दील हो गई और किस तरह से उन लोगों ने एक दूसरे को मारने की कोशिशें की, उनके मजीद अच्छे से अच्छे अड्डे पर हमला करने की कोशिश की। इसी तरह इसराइल ने भी कोई कमी नहीं की। इसराइल ने भी बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया जैसे ईरान उसको जवाब देता है, और अब ये जंग कोई मामूली जंग नहीं रही, ये एक खूनी जंग में बदल चुकी है जिसका बदला सिर्फ खून से ही लिया जा रहा है और इस टाइम भी यही हो रहा है। लेकिन अंदेशा अब ये आता है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी जंग होने जा रही है, लेकिन अब तासरात तो हमें भी यही लगते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है कि ईरान ने मतलब गलत मुल्क का साथ नहीं दिया है, उसने फलस्तीनियों का साथ दिया है, उसने लेबनान का, अपने अरब मुल्क मुसलमान भाइयों का साथ दिया है और ये भी साबित किया है कि मुसलमान वाकई ही आपस में भाई भाई हैं और ये साथ देना कोई जुर्म नहीं कहलाता है। लेकिन इसराइल अपनी जो बगैरतियों पर उतर आया है उसका हल सिर्फ यही था कि उसको उसके तरह ही जवाब दिया जाए, क्योंकि वर्बली उससे टॉक की गई थी। पिछले दिनों भी जब ईरान हमला करना चाह रहा था लेकिन ईरान ने हमला नहीं किया, तो वो भी यही चाहता था कि अवाम को नुकसान ना पहुंचे किसी तरीके से, सिर्फ उनके ही जो इस कदर इस हमले में मुलव्विस हैं उन लोगों को नुकसान पहुंचे, लेकिन मासूम जानों को कुछ ना हो। लेकिन इसराइल इस बारे में नहीं सोचता है क्योंकि उसका ज़र्फ सोचने के काबिल ही नहीं है, उसका ज़र्फ इतना है ही नहीं कि वो इस बारे में सोच सके। अब देखना ये है कि दोनों के दरमियान कैसी बड़ी जंग जो है वो सामने आने वाली है। हालात कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए